નમસ્કાર, હું રેશમા. અમારા ખાસ કાર્યક્રમ કરંટ ટોપિકમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. જે પ્રકારે અત્યારે કોરોનાએ વૈશ્વિક સ્તરે જે કહેર મચાવેલો છે અને દરેક લોકો અત્યારે કોરોનાના કારણે લોકડાઉન છે પોતાના ઘરોમાં, ત્યારે અહીંયા સવાલ એ પ્રકારે થાય છે કે જેને પણ કોરોના થાય છે, જેના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવે છે, તે લોકોના સાથે સાથે બીજા જે લોકો છે તે પણ સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે. તે સાથે સાથે જેના પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવ્યા છે તેના માટેનું જે પણ એક માનસિકતા જે છે એક બદલાયેલી જોવા મળતી હશે. અત્યારની પરિસ્થિતિમાં આપણે જોઈએ કે અત્યારે પૂરો દેશ અને સાથે સાથે દુનિયા બધા જ લોકો આ કામથી જે કોરોનાને કેવી રીતે આપણે માત આપી શકીએ તેની માટે સતત લડાઈ લડી રહ્યા હોય, ત્યારે આપણે સપોર્ટ ફક્ત લોકડાઉનમાં રહીને લોકડાઉનનો અમલ કરીને આપવાનો છે. પણ અહીંયા એક સવાલ એ પણ છે કે અત્યારે લોકોના મનમાં એક હાવ પેદા થયો છે, એક ડર પેદા થયો છે, અને તે ડર છે કે કોરોના જો મને થઈ ગયો તો, મારો રિપોર્ટ જો પોઝિટિવ આવ્યો તો, મને કોઈ એ પ્રકારના સિમ્ટમ્સ દેખાયા તો. પહેલા એક સમય એવો હતો કે ખાલી શરદી ખાંસી થતી હતી, તાવ આવતો હતો તો કદાચ આપણે ડૉક્ટર પાસે જવાનું પણ ટાળતા હતા અને ઘરમાં જ આપણે સેલ્ફ મેડિકેશન લેતા હતા અને ત્યાંને ત્યાં કદાચ આપણને 2-3 દિવસમાં તાવ, શરદી, ઉધરસ સારા થઈ જતા. પણ અત્યારે આ જ સામાન્ય સિમ્ટમ્સ આપણને ભારે પડી શકે તેવી પરિસ્થિતિ છે. દરેક લોકો અત્યારે માસ્ક પહેરે છે, સેનિટાઈઝનો ઉપયોગ કરે છે, એટલી ક્લીન રહે છે, હાઇજીનનું ધ્યાન રાખી રહ્યા છે. આ બધી જ બાબતો હોવા છતાં પણ આપણને એક ડર છે. પણ જેવી રીતે આપણે કહીએ કે જેવી રીતે પોઝિટિવનો આંકડો આપણને સતત ડરાવી રહ્યો છે, તેવી જ રીતે રિકવરી થયેલા લોકો જે છે કે રિકવરી થયેલા પેશન્ટ જે છે તેમનો પણ આંકડો આપણને એક સારી રીતે એવી એક આશા આપી રહ્યો છે. વેક્સિન નથી શોધાઈ, સોશિયલ મીડિયા ઉપર સતત આવા વિચારો મૂકી રહ્યા છે, લોકો પોસ્ટ મૂકી રહ્યા છે કે ક્યાં સુધી આ કોરોનાને આપણે ફેસ કરવો પડશે. લોકો અત્યારે ડરી રહ્યા છે, શું આપણી લાઈફની અંદર આ કોરોનાને આપણે એડજસ્ટ કરવો પડશે? તો હાવ કેવી રીતે આ પોસિબલ છે? આ ઘણા બધા સવાલો થઈ રહ્યા છે. પણ તેની સાથે એક જે ડર છે કે આ રિકવરી ના થઈ શકે તો શું કોરોના જેને થાય તો તે વ્યક્તિ શું એને મોત જ મળે છે? આવા ઘણા બધા સવાલોની વચ્ચે આજે મારી સાથે એક મધ્યપ્રદેશ ભોપાલમાંથી વરિષ્ઠ પત્રકાર કે સક્સેના, કે જે પણ પોતે કોરોનાના પેશન્ટ હતા, તેમનો રિપોર્ટ પણ પોઝિટિવ આવ્યો હતો અને અત્યારે તેમને રિકવરી થઈને તે અત્યારે ફેમિલીની સાથે છે, તે મારી સાથે જોડાયેલા છે. તો આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ. કે સક્સેના जी, आपका स्वागत है गुजरात न्यूज में. जी, सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मैं आपको बधाइयां देना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ पे सभी जगह पे अभी लड़ाई चल रही है कि कोरोना को हम कैसे हराए, लेकिन आपने जिस तरह से हराया वो बहुत ही अच्छी बात है. आपको बधाइयां देते हैं और आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से अभी लोगों के मन में जो डर है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बात की शुरुआत एक शेर से करता हूं जो मैंने लिखा है कि हौसले बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती और चलने वालों की राह मुश्किल नहीं होती. रेशमा जी, जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनको किसी भी चीज से, ये कोरोना क्या दुनिया की कोई भी चीज नहीं हरा सकती. अगर आदमी का हौसला बरकरार है, उसकी हिम्मत है, तो वो हर चीज को जीत सकता है. और जो लोग भी कोरोना से पीड़ित हैं और जो नहीं है, दोनों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं. अगर आपने इसका हिम्मत से सामना किया, नियमों का पालन किया, तो आप इसको आसानी से जीत सकते हैं. इसके लिए तीन चार मैंने मूल मंत्र देखे हैं. आपको 24 घंटे में 8 बॉटल गर्म पानी पीना चाहिए, 4 बार गार्गिल करना चाहिए, गरारे करना चाहिए, और 2 बार स्टीम लेना चाहिए. एक अमृत धारा होता है, या तो अमृत धारा या विक्स की. जी. ये करने से आप पूरा पॉइजन बाहर हो जाता है और आप कोरोना का वायरस आपके गले से और लंग से बाहर निकल जाता है. और आप हिम्मत रखें, कोरोना से जीतना बहुत आसान है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं. जी, उसके साथ सक्सेना जी, जिस तरह से हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट किस तरह से हुई है. और बहुत सारी चीजें जो है कि लोगों के दिमाग में, जो अभी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके दिमाग में भी बहुत सारा डर है कि किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं. एक अलग सा वे वहां पे उन लोगों को दिखाई दे रहा है, वो भी सिर्फ इमेजिनेशन से. लेकिन आपके पास हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं. जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जब कोरोना का अगर किसी को भी पॉजिटिव आता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. आपको अपनी जरूरत का सामान जो आप उपयोग करते हैं वो अपने बैग में रखिए. आप अगर पढ़ने लिखने वाले हैं तो आप अपनी किताबें, आपका
लेखन का काम, आप ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग, जो आपकी रुचि की चीज है वो अपने साथ रखिए और आराम से निर्भीक होके अस्पताल जाइए। जैसा टीवी पे दिखाते हैं कि लोगों को ऑक्सीजन लगी हुई है और लोग ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन में होता है। सामान्यतः ऐसा कुछ भी नहीं होता जो टीवी में साइड में चलता रहता है कि ऑक्सीजन लगी हुई है, लोग खड़े हुए हैं। ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन जो लास्ट स्टेज के लोग होते हैं उनको होता है। हिंदुस्तान में मैं समझता हूं 95% लोगों को ये स्थिति हुई ही नहीं है। मैं तो हॉस्पिटल गया तो अपने जरूरत के सामान में लेके, क्योंकि एक दिन पहले मेरी बेटी को पॉजिटिव आया था, वो लंदन से आई थी, वो 25 तारीख को गई थी और उसके बाद मुझे भी वो 22 को गई थी, मुझे 25 को आया था। मैं वहां गया तो मुझे मालूम था कि कैसे करना है। मैं अपने जरूरत के सब सामान, जो चीजें मुझे, लौंग है, तुलसी है, इलायची है, हल्दी का दूध मुझे मालूम था पीना चाहिए। मेरा बेटा जो विलक्षण है उसने सारी रिसर्च करके मुझे बता दी थी कि पापा अपने को इस तरह से करना है। तो मैंने वो सारी चीजें, मेरी पत्नी भावना सक्सेना ने वो सारे सामान मेरे साथ रख दिए थे और मैं निर्भीकता से वहां गया। और आप वहां रहिए। मेरा तो डॉक्टर जो एम्स में डॉक्टर कहते हैं सागर था, और वहां के जो कहते हैं डायरेक्टर हैं डॉक्टर सरमन सिंह, और एक डॉक्टर इंगले था। वो लोग इतने अच्छे थे। जब मैं पहुंचा हॉस्पिटल तो डॉक्टर सागर ने मुझसे ये पूछा कि सर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है लेकिन आपको कोई बहुत लक्षण नहीं है, तो मैं आपको क्या दवा दूं? तो मैंने उससे कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या दवा दें, आप डॉक्टर हैं। इसलिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि आपको ये ना लगे कि मैं कोई दवा नहीं दे रहा। अभी आपको कोई लक्षण नहीं है, मेरे हिसाब से आपको कोई दवा नहीं देने की जरूरत है। तो मैंने कहा इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि अगर मुझे कोई दवा की आवश्यकता नहीं है तो मत दीजिए। तो उन्होंने मुझे कोई दवा प्रिस्क्राइब नहीं करी, कुछ नहीं करी। मैं रात को हॉस्पिटल में सो गया, लेकिन सवेरे जब मैं उठा तो एक हमारे यहाँ का बड़ा फेमस अखबार है, सभी लोग जानते हैं, भास्कर अखबार है, उसमें उन्होंने अनर्गल और झूठी बातें मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में प्रकाशित कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो गया था। और उस टेंशन की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। कोरोना तो एक तरफ हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ गया था जो मुझे कभी था ही नहीं। तो वो डॉक्टर ने देखा जब रिपोर्ट, तो उसने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, आप एक 5 mg की टेबलेट खाइए ब्लड प्रेशर की, बाकी ठीक है, और आप इन चीजों की चिंता मत करें। खैर वो सब बातें चली गई। उसके बाद मैं वहां 9 दिन बाद आया था और 9 दिन मैंने एक भी कोई टेबलेट नहीं खाई। सिर्फ मैंने गार्गिल करा, गर्म पानी पिया, स्टीम ली और अपनी नियमित दिनचर्या के हिसाब से, उस दिनों नवरात्रि चल रही थी तो मैं नवरात्रि में देवी का कवच और पाठ जो करता हूँ वो करा। वहां पर मैं ओशो को पढ़ना बहुत पसंद करता हूं, तो मैंने ओशो की किताबें पढ़ी। मैंने अपना लेखन का कार्य एक पत्रकार होने के नाते जो लिखता करता हूं वो लिखा आराम से, और मैं अपनी नियमित दिनचर्या से रहा और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई और मैं वहां से ठीक होके आराम से आ गया। तो मेरा सबसे यही कहना है आपके दर्शकों से जो आपके चैनल को उस समय देख रहे हैं कि आप बिल्कुल भी कोरोना से मत घबराइए, उसको जीतना, क्योंकि आपका शरीर ही उससे लड़ने की पूरी ताकत रखता है। आपके शरीर के अंदर ही वो ताकत है जो कोरोना से आराम से जीत सकती है। बस आपको हिम्मत और हौसला बना के रखना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जी, यहाँ पे सक्सेना जी एक दूसरी बात की, जिस तरह से क्रिटिकल कंडीशंस जहां तक नहीं होती है वहां तक दवाइयां नहीं दे रहे हैं और खुद से ही अपने जो बॉडी के जो सेल्स है वो ही शायद कोरोना से लड़ सकते हैं। ये बात हम अभी कह सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। जब तक क्रिटिकल पोजीशन नहीं हो, मेरे ख्याल से समझदार डॉक्टर कोई दवा नहीं देते। और अगर बुखार होता है, खांसी होती है कुछ, तो वो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोक्लोरोक्विन देते हैं, जो आदमी को कहते हैं। मेरी बेटी को जो दी गई थी 4 दिन वहां डॉक्टर ने, मेरी बेटी को लक्षण थे थोड़े, तो उन्होंने हाइड्रोक्लोरोक्विन दी थी उसको जी। उसके अलावा और कोई दवा नहीं देते। क्रिटिकल पोजीशन में भी कोई ऐसी स्थिति बनती नहीं है, वो तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन ही लगती है आदमी को। लेकिन ये स्थिति नहीं आए अगर आदमी, मैंने फिर रिपीट करूंगा कि आदमी कम से कम 4 बार गरारे करे, 8 लीटर पानी, गर्म पानी पिए और स्टीम ले, तो ये क्रिटिकल पोजीशन आएगी ही नहीं।
जी सक्सेना जी, दूसरी यहाँ तो पे जो कभी बात भी है जी जी, दूसरी बात की जिस तरह से हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात समझाई गई है, सतत जो सरकार की तरफ से भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। जिस तरह से आपकी ट्रीटमेंट हुई कि वहां पे जाके डॉक्टर ने आपको पूछा कि आपको सिम्टम्स इतना ज्यादा नहीं है तो कौन सी दवाई दूं, तो शायद ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ही ज्यादा तौर पर लोगों को यहाँ पे एडमिट किया जाता है, ये हम मान ले। नहीं कोई डरने की जरूरत है कि सिर्फ ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप दूसरे लोगों से कि जो अभी हेल्दी है उनसे आप दूर रह सके। एग्जैक्टली एक्चुअली ये पूरा एक तरह से हॉस्पिटलाइजेशन जो है, अगर जी बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं है तो एग्जैक्टली वो आइसोलेशन है। और जी आपकी आपकी इम्यूनिटी आराम से अगर वो बरकरार है तो आपकी इम्यूनिटी आराम से कोरोना के ऊपर हावी हो जाती है, कोरोना आपके ऊपर हावी नहीं हो पाता। और उस जी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए आपको संतरा खाना चाहिए, आपको किशमिश खाना चाहिए, जी नींबू का पानी पीना चाहिए, विटामिन सी की जितनी भी चीजें हैं उनका उपयोग करना चाहिए आपको। उससे फिर आपको कहते हैं आपकी इम्यूनिटी डेवलप रहेगी तो कोरोना खुद ही चला जाएगा 2-5-7 दिन में। जी सक्सेना जी, आपको आपकी बेटी की वजह से कोरोना हुआ था, उनको था उसकी वजह से वो लंदन से आए थे तो? एक्चुअल में क्या था मैडम, मेरी बेटी जो थी 17 को लैंड करी थी दिल्ली में फ्लाइट से, और मेरा बेटा उसको रिसीव करने गया था। तो ओके वो वहां पर एलएलएम कर रही है गुंजन, मेरी बेटी। ओके तो वो खुद समझदार थी, तो उसने मुझसे ये कहा वहीं से दिल्ली से ही कि पापा देखिए मैं जो है, हमारा भोपाल में एक 15 किलोमीटर दूर पे एक 20 किलोमीटर दूर फार्म हाउस है, वहां मकान है छोटा। उसने कहा मैं वहां जाके रहूंगी, आप लोग से दूर रहूंगी। ओके ओके जबकि एयरपोर्ट पे उसको क्लीन चिट दी थी, उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जी फिर भी उसने एहतियातन ये कहा। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप हमारे अपने घर में ही रहिए, हमारे घर में नीचे के फ्लोर पे गेस्ट रूम है। तो मैंने कहा आप गेस्ट रूम में रहो, तो वो गेस्ट रूम में रही। 18 से आई वो, 19, 20 और 21 को उसको कुछ खांसी और गले में कुछ कहते हैं इस तरह के सेंसेशन हुए। सिम्टम्स दिखे तो मैंने जी जी हाँ सिम्टम्स कुछ लगे, तो उसने मुझे कहा। तो मैंने भोपाल में जो कलेक्टर है वो भी बहुत अच्छे आदमी है हमारे, जी तरुण पिटोटे जी, मैंने उनको फोन करके बताया, वो मुझे जानते थे तो मैंने बताया। तो उन्होंने तत्काल उसके लिए डॉक्टर्स की टीम भेजी, वो स्वाब ले गए और दूसरे दिन उसको पॉजिटिव आया। जब पॉजिटिव आया उसको ले जा रहे थे, तो क्या हुआ कि उसके जाने के बाद नगर निगम के लोग, लोकल बॉडीज के लोग घर को सैनिटाइज करने के लिए आए, दवाई वाई छिड़कते। तो जिस कमरे में वो थी उस कमरे में वो छिड़कने गए, तो मैं भी गया, तो उसकी कुछ किताबें वगैरह सामान फैला हुआ था। तो मैंने कहा ये खराब नहीं हो जाए, तो मैंने वो हटाया। तो हो सकता है कि वो उसको हटा के टच करने में, रखने में वो कहीं वायरस होगा उसका, वो जो मुझे लगा जिसकी वजह से मुझे पॉजिटिव आया। जी सक्सेना जी, दूसरी यहाँ पे बात यह है कि ज्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं देश में, उसकी वजह से हॉस्पिटल में जो भी फैसिलिटीज देनी चाहिए उसमें शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, ये बात आप किस तरह से देखते हो? देखिए, जहां तक मैं मेरी व्यक्तिगत बात करता हूं, तो मैं एम्स हॉस्पिटल में था, मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। वहां सब तरह खाना भी 2 टाइम देते थे। वो एक अलग बात है कि अब हॉस्पिटल में तो आप ऐसा सोचो कि घर जैसा खाना मिले, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल नहीं है। जो मिनिमम चीज होती है आदमी के लिए आवश्यक, वो सब उपलब्ध रहती है। और वो लोग बेचारे अपनी जान पे खेल कर, भाई उनको मालूम है कि आपको कोरोना है, आपके संपर्क में अगर वो आएंगे तो उनको भी हो जाएगा, जान पे बनाएगी। उसके बावजूद वो आपकी सेवा कर रहे हैं। वहां जो सफाई कर्मी थे, जो हमारे खाने की प्लेटें उठा के ले जाते थे, डेली कमरा साफ करते थे, वो सब लोग कितने कड़े मन से, सेवा भाव से इस काम को कर रहे होंगे। जो नर्सेज हमारा ब्लड प्रेशर लेने आती थी, हमारा कहते हैं जनरल चेकअप करने आती थी, वो लोग अपनी, आप सोचिए उनके मनोभाव को समझिए, उसको समझना चाहिए कि वो लोग कितनी हिम्मत से ये सब काम कर रहे हैं। तो आपको उनको कोऑपरेट करना चाहिए। हॉस्पिटल के लोगों, ये अलग हो सकता है कि कहीं बहुत जगह असुविधा हो रही हो लोगों को, मुझे नहीं मालूम, और तो भी आदमी को आइसोलेट होने के लिए पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए और अलग रहना चाहिए। 10-12 दिन में ऑटोमेटिक कोरोना ठीक हो जाता है, फिर आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
सक्सेना जी, यहाँ पे जिस तरह से देखिए कि पहले आपका रिपोर्ट जो पॉजिटिव आया, उसके बाद जैसे आपने बताया कि आयुर्वेदिक जो उपचार है वो किए हुए थे वहां पे, गागल की जिस तरह से आपने बात की, फिर दूसरे जो भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उनकी आपने बात की, तो फिर आपका जब रिपोर्ट कितने दिनों के बाद हुआ था और उसमें सीधा वो नेगेटिव ही आया था, फिर वहां पे भी कुछ इशू हुआ था? देखिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। मेरी बेटी को जरूर कहते हैं, एक बार पॉजिटिव और आया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि तुलसी, काली मिर्च और अपना क्या नाम है, अदरक, इस सब की ब्लैक टी बनाकर ओके। डेली मॉर्निंग में 2 टाइम हम लोग पीते थे, जिससे वाकई हमको काफी रिलीफ हुआ। फिर जिस दिन मैं पहुंचा था उसके 8वें दिन उन्होंने मेरा भी स्वाइब लिया, मेरी बेटी का भी लिया, दोनों का एक साथ स्वाइब लिया। और उसके दूसरे दिन 8वें दिन हमारी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। और उनने फिर 9 तारीख को लिया, 3 तारीख को, सॉरी, पहले 2 तारीख को लिया, फिर 3 तारीख को लिया। 3 तारीख को भी सवेरे लिया, तो शाम तक फिर रिपोर्ट हमारी जो है नेगेटिव आ गई। तो 9 तारीख को और 3 तारीख को फिर शाम को उन्होंने हमारी छुट्टी कर दी। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में बहुत सारे पेशेंट हो सकता है, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक मालूम है कि 14 दिन से पहले किसी की भी छुट्टी हॉस्पिटल से नहीं होती। लेकिन मैं एकमात्र ऐसा आदमी रहा जिसकी 90 दिन छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से। 90 दिन में किस तरह से, यानी आपका जो भी रिपोर्ट्स आए थे वो नेगेटिव थे, इसी की वजह से 9वें दिन आपको छुट्टी? यस। ओके, दो नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती हैं तो हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। ओके, यानी पॉजिटिव के बाद वो 2 रिपोर्ट्स करते हैं और वो नेगेटिव होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें से कोई एक पॉजिटिव है तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है। हाँ, रहना पड़ता है। वो जब तक 2 लगातार रिपोर्ट आपकी नेगेटिव नहीं आएंगी तब तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। और मैडम, हम आपको एक बात बताएं, हम पूरी जिंदगी पॉजिटिविटी में जिए। हमने हमेशा हर चीज को पॉजिटिव सोचा। हम चाहते थे कि हर चीज पॉजिटिव हो लाइफ में, और हर आदमी के प्रति, पढ़ने लिखने, हर काम के प्रति हमने पॉजिटिव रवैया रखा जीवन भर। लेकिन पहली बार जीवन में हमने नेगेटिव आने का इंतजार किया कि नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए। पहली बार लाइफ में हमने नेगेटिव का इंतजार किया और वो नेगेटिव आया, दोनों दिन आया और हमारी आराम से छुट्टी हो गई। दूसरी चीज में जी वही तो बोल रहे हैं ना अभी सक्सेना जी, सभी यही बोल रहे हैं कि पहली बार कोई भी इंसान पॉजिटिव वर्ड बोलने के लिए वो डरता है, उसको पॉजिटिव वर्ड ही सबसे ज्यादा नेगेटिव लग रहा है अभी। तो इस तरह से पूरा डर अभी फैला हुआ है पूरी तरह। हाँ, दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं मेरे अनुभव के आधार पे सब जो घटना घटित हुई, ये सब काम रहा कि जितने भी लोग हैं उनको एक बात को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि जैसे किसी भी परिवार में कोई को पॉजिटिव आया कोरोना, तो आसपास के लोग इतने भयभीत हो जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है लोगों के साथ। वो लोगों से नफरत जैसा करने लगते हैं। तो मेरा कहना है कि रोग से नफरत करें, रोगी से नहीं। हमको कोरोना से नफरत करना है, जिसको कोरोना हो गया उससे नफरत नहीं करना है, उसका सहयोग करना है। उसके परिवार का हम उस समय उस विकट परिस्थितियों में जितना सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करना चाहिए, उसका आत्मबल बढ़ाना चाहिए। सामान्यतः हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि जहां जिस मोहल्ले में किसी के यहाँ पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, कोरोना हो गया, तो लोग उससे घबराने लगते हैं, उसके परिवार से ऐसे जैसे छुआछूत जैसी स्थिति बन जाती है। वो नहीं करके लोगों को मनोबल बढ़ाना चाहिए एक दूसरे का, और ऐसे कठिन समय में जिसके साथ भी ये स्थिति है उसका साहस बढ़ाने का काम करना चाहिए। तभी आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे देश के व्यक्ति होने का परिचय देंगे। जी, बहुत ही सही बात आपने कही सक्सेना जी, कि जिस तरह से लोग अभी छुआछूत की जैसी उनको फीलिंग आ रही है और वो भाग रहे हैं कि नहीं यहाँ पे इस घर वाले को किसी को कोरोना हुआ है, उसका पॉजिटिव आया है। इवन ऐसा बोल सकते हैं कि रिपोर्ट सिर्फ करवाते हैं, फिर भी वो वहां पे उसको सबकी नजर से देखते हैं कि क्या इसको पॉजिटिव आया होगा, ये छुपा तो नहीं रहे कहीं ना कहीं। ये सब बातें यहाँ पे हो रही है। और शायद जब से ये पूरा लॉकडाउन हुआ, कोरोना के जब रिपोर्ट्स आने लगे, जब एक के बाद एक विजिट्स जब बढ़ने लगी, सक्सेना जी यहाँ पे एक बात बहुत ही गौर करने वाली है कि लोगों को कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, शायद उससे या ट्रीटमेंट होने वाली है, उसके अलावा भी ज्यादा उनको डर लोगों के बिहेवियर का रहता है कि वहां पे जाएंगे, ये प्रोसेस पूरी है, उनसे ज्यादा डरे हुए हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लोगों को रिपोर्ट पॉजिटिव आने का इतना भय नहीं रहता जितना भय अपने आसपास के वातावरण पैदा कर देता है। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज कि आपको अस्पताल जाने के लिए बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अस्पताल में आप जाके एक तरह से आइसोलेट हो रहे हैं। अगर आपको कोई सिम्टम होंगे तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखें, अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखें। आप आराम से कोरोना से जीतकर वापस आ सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोरोना आप पर जीत हासिल कर लेगा, वहां पर हावी हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी। उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आप उस पर हावी होइए अपने आत्मविश्वास। जी, आपको लास्ट में एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से सक्सेना जी हमने देखा है कि आपने कोरोना को मात दी, उसको हराया और आप अभी रिकवर होके घर पे है, तो यहाँ पे जो लोग डर रहे हैं उनको ऐसा हुआ है कि कोई भी युवा है वो भी डर रहा है। जिस तरह से केसेस हमने देखे कि जो मौत के जो केसेस हो रहे हैं वो ज्यादा तौर पर उनको कोई ना कोई दूसरी पुरानी बीमारियां थी और उनको कोरोना हुआ था, ताकि कहीं ना कहीं वो रिकवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि पहले की बीमारी आती, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको ज्यादा वहां पे क्रिटिकल कंडीशंस हुई। तो ये लोग जो अभी डर रहे हैं, शायद उनको डरने की अभी जरूरत नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहोगे और उसके बारे में क्या बताओगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिन लोगों को कुछ बीमारी है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज्यादा सावधानी रखना चाहिए। उन लोगों के कम से कम संपर्क में आना चाहिए, क्योंकि कोरोना जो है, जिन लोगों को इस तरह की कोई डिजीज है पहले से, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ, उनको बहुत तेजी से वो पकड़ता है और उन पे हावी होता है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी, उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है, इसलिए कोरोना उन पे हावी हो जाता है। यंग लोगों के ऊपर कोरोना बिल्कुल भी हावी नहीं होता, क्योंकि उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, उनके शरीर की लड़ने की खुद शक्ति होती है, इसलिए वो आराम से जीत सकते हैं। 95% लोग वो उनकी डेथ हुई है जो लोग उम्र में ज्यादा थे, या जिन लोगों ने लापरवाही की, या जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रसित थे। जो लोग सजग रहे, जो लोग अवेयर रहे, जिन लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि हमको इससे, जैसे कोरोना हो चाहे ना हो, अभी जिस तरह का वातावरण है, अगर कोई भी आदमी घर में रह के काली मिर्ची तुलसी की चाय पी ले 2 बार, गरारे कर ले या गर्म पानी पी ले, तो इसमें क्या हर्ज है? आप घर में तो है ही, ये करने में क्या हर्ज है? ये एक प्रिकॉशन है। आप अगर इसका पहले से ही पालन करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये कहीं से भी गलत नहीं है। मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो लोग भी आज इस कोरोना रूपी मैराथन में शामिल हैं, उन सब लोगों का सबको उत्साहवर्धन करना चाहिए। जो भी लोग डॉक्टर, नर्सें, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, पत्रकार आप सोचिए तो जगह जगह जा रहे हैं, उनको भी तो भय, उनको भी तो हो सकता है, उनको भी तो, लेकिन वो सब लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि उन सभी लोगों का उत्साहवर्धन करना चाहिए, उनका थाली ताली बजाकर उनका खूब स्वागत करना चाहिए, ताकि उनका उत्साहवर्धन हो, वो काम कर। आज हमारे पत्रकार बंधु आप भी हैं मैडम, आप भी कहीं से आई होंगी स्टूडियो में, कहीं का रास्ता तय करके आई होंगी, तो इसके लिए आपने कितनी हिम्मत जुटाई। आपके परिवार के लोग भी इस बात से टेंशन में होंगे कि आप यहाँ तक आई हैं, अभी फिर जब तक आप घर नहीं पहुंचेंगी, आप सेफली पहुंच नहीं जाएंगे, तब तक उनको टेंशन रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये जितने भी लोग लगे हुए हैं इस काम में, मेरा ये कहना है उन सबका खूब सम्मान करना चाहिए, उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, ताकि कि वो अपने काम को सही ढंग से अंजाम दे सके। उनमें मीन मेख निकालने की जगह, उनमें गलतियां निकालने की जगह, हमको उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए कि वो इस विकट स्थिति में लोगों का साथ दे रहे हैं।
जी। बहुत अच्छी बात। तो जिस तरह से आप हमारे साथ जुड़े और लोगों का उत्साह बढ़ाया, जो लोग डर रहे थे उनको भी ऐसा अभी पॉजिटिव फील होगा, नहीं कि उनको पॉजिटिविटी से या अपने रिपोर्ट्स की वजह से शायद उनको कोई टेंशन हो। इम्यूनिटी लेवल की आपने बहुत ही अच्छी बात की, इम्यूनिटी लेवल जिसका अच्छा है, जो युवा है, तो उनको कोई भी इश्यूज नहीं हो पाएंगे। शायद जो कहीं ना हम देखते हैं ऐसा कि किसी को ना हो, जल्दी से ये कोरोना पूरी दुनिया में से खत्म हो जाए और पहले जैसी हमारी लाइफ हो जाए, बहुत अच्छी वाली। आपका सक्सेना जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ अंतिम बात करने अंतिम के लिए। अंतिम अंतिम जी, बात कहना चाहूंगा। जरूर। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैडम, कोरोना जितनी तेजी से आया है जी, उससे चौगनी गति से वापस जाएगा, ये हाँ मेरा जी, आत्मविश्वास है। जी, जी। हम भी यही आशा करते हैं। सक्सेना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद रश्मि जी, जी, धन्यवाद, जी। नमस्कार। થેન્ક યુ વેરી મચ। તો દર્શક મિત્રો, મહત્વની વાત કે જે પ્રકારે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી ખાસ કોરોનાની અને તેની સાથે સાથે જ કોરોનાને માત આપીને આવેલા મધ્યપ્રદેશ ભોપાલમાંથી જે વરિષ્ઠ પત્રકાર કે સક્સેના અમારી સાથે જોડાયા હતા, તેમની સાથે આપણે વાત કરી છે। અહીંયા ઇમ્યુનિટી લેવલની તેમણે ખૂબ સુંદર એવી વાત કરી છે અને પ્રશાસન પોતાનું કામ કરી રહ્યું છે, પણ આપણે પોતાની રીતે લોકડાઉનનું પાલન કરવાનું છે, પોતાનું ધ્યાન રાખવાનું છે, સેફ રહેવાનું છે। તો આવી જ રીતે ફરીથી એક નવા વિષય ઉપર ચર્ચા કરવા ઉપસ્થિત થઈશું। ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।